بسم الله الرحمن الرحيم. باب السلام. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال: من أسلف في ثمر فليسلف في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم. ويصح السلم في كل ما ينضبط بالصفة إذا ضبطه بها، وذكر قدره بما يقدر عليه من كيل أو وزن أو زرع أو عد، وجعل له أجلا معلوما، وأعطاه الثمن قبل تفرقهما. ويجوز السلم في شيء يقبضه أجزاء متفرقة في أوقات معلومة، وإن أسلم ثمنا واحدا، الف بڑھا دیے دونوں جگہوں پر، ثمنن نون کے بعد بھی الف بڑھائیے اور واحدا وہاں بھی الف بڑھائیے کیونکہ وہی صیغہ لغت کے اعتبار سے مناسب ہے. وَإِنْ أَسْلَمَ ثَمَنًا وَاحِدًا فِي شَيْئَيْنِ، وَإِنْ أَسْلَمَ ثَمَنًا وَاحِدًا فِي شَيْئَيْنِ لم يجوز حتى يبين ثمن كل جنس. ومن أسلم في شيء لم يصرفه إلى غيره، ولم يجوز له بيعه قبل قبضه ولا الحوالة به، وتجوز الإقالة فيه أو في بعضه لأنها فسخ. باب السلم، سلم کا باب. باب السلم، بیع سلم کا باب. بیع سلم کا باب. بیع سلم کہتے ہیں قیمت پیشگی دے دینے اور سامان بعد میں لینے کو. کیونکہ سبق سمجھنے میں آسانی ہو اس لیے میں اس کی وضاحت کر رہا ہوں، ورنہ تشریح تو بعد میں ہوگی. سبق سمجھنے میں آسانی ہو اس لیے میں اس کی وضاحت کر رہا ہوں کہ بیع سلم کہتے ہیں قیمت پیشگی دینے اور چیز بعد میں حاصل کرنے کو. اس کو کہتے ہیں بیع سلم. یعنی قیمت معجل ہوگی عین کے ساتھ فی الفور، اور سامان مؤجل ہوگا الف کے ساتھ بعد میں ایک مدت کے بعد جو وہ آپس میں طے کریں گے. عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے. وہم یسلفون فی الثمار، اور وہ پھلوں میں سلف یا سلم کرتے تھے. سلف اور سلم ایک ہی معنی میں ہے. بیع سلف یا بیع سلم کرتے تھے، اور وہ پھلوں میں بیع سلف یا بیع سلم کرتے تھے 1 سال یا 2 سال کے لیے. 1 سال اور 2 سال کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے، اور لوگ پھلوں میں بیع سلف یا بیع سلم کرتے تھے 1 سال اور 2 سال کے لیے. زیادہ واضح الفاظ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے اور لوگ پیشگی قیمت دے کر 1-2 سال کے بعد سامان پھلوں میں 1-2 سال پیشگی قیمت دے کر، پھلوں میں 1-2 سال پیشگی قیمت دے کر دینے کا معاملہ کرتے تھے. فقال، آپ نے کہا، من اسلم فی ثمر، جو کسی پھل میں بیع سلف کرے، فلیسلف، تو وہ سلف کرے، فی کیل معلوم، معلوم ماپ میں، معلوم ناپ میں، اور وزن معلوم، اور معلوم وزن میں، الی اجل معلوم، معلوم مدت تک کے لیے. جو بیع سلف کرے اسے چاہیے کہ متعین ماپ کے ساتھ اور متعین وزن کے ساتھ اور متعین مدت کے ساتھ یہ بیع کرے. ہو سکتا ہے بعض الفاظ میں تمر کا لفظ آیا ہے. تمر اور ثمر، تمر کریں گے صرف ترجمے کا فرق پڑے گا، ورنہ چیز بیع تو سلم ہی رہے گی. اسے چاہیے کہ معلوم ناپ میں اور معلوم وزن میں اور معلوم مدت تک کے لیے کرے. وَيَصِحُّ السَّلَمُ، اور بیع سلم صحیح ہے، فی کل ما ينضبط بالصفت، ہر اس چیز میں جسے صفت کے ذریعے منضبط کیا جا سکتا ہو، صفت کے ذریعے مقرر کیا جا سکتا ہو، جسے صفت کے ذریعے منضبط اور مقرر کیا جا سکتا ہو. اور بیع سلم صحیح ہے ہر اس چیز میں جسے صفات کے ذریعے منضبط اور مقرر کیا جا سکتا ہو.
इज़ा ज़बतहु बिहा, जब वो उसे मुंज़बित करे, जब वो उसे मुकर्रर करे। व ज़करा क़द्रहु बिमा युक़द्दरु अलैहि, और वो उसकी मिक़दार बयान करे जिस तरह की मिक़दार बयान की जा सकती है, और वो मिक़दार बयान करे जिस तरह मिक़दार बयान की जा सकती है। मिन कैलिन, खा माप में हो, माप के एतबार से, औ वज़निन या वज़न के एतबार से, औ ज़रइन या माप के एतबार से, हाथ के जरिए जो मापते हैं ना उसके एतबार से, या हाथ के एतबार से, या माप के एतबार से, औ अद्दिन या अदद के एतबार से, तेदाद के एतबार से। इसका ताल्लुक वज़करा क़द्रहु बिमा युक़द्दरु अलैहि मिन कैलिन औ वज़निन औ ज़रइन औ अद्दिन, ये सब एक ही है, यानी एक ही सिलसिले का जिक्र कर रहे हैं कि वो जिक्र करे मिक़दार को जिस तरह उसकी मिक़दार बयान की जा सकती है, माप के एतबार से, नाप के एतबार से, या वजन के एतबार से, या माप के एतबार से, या तेदाद के एतबार से। ठीक है। वजअल लहू अजलन मालूमा, और उसकी मिक़दार मुकर्रर करे, और उसकी मालूम मुद्दत मुकर्रर करे, मिक़दार नहीं बल्कि मुद्दत, मिक़दार तो गुजर चुकी ऊपर। वजअल लहू अजलन मालूमा, और उसकी मुद्दत मुकर्रर करे, मालूम मुद्दत, और उसकी मुद्दत, और उसकी एक मालूम और मुकर्रर मुद्दत मुकर्रर करे, और उसकी एक मालूम और मुकर्रर मुद्दत मुतय्यन करे। वो आता हुस्समना क़ब्ल तफ़र्रुक़िहिमा, और उसको कीमत दे दे, और बाए को कीमत दे दे उन दोनों के जुदा होने से पहले। वो आता हुस्समना, और बाए को कीमत दे दे, उसको दे दे यानी बाए को, और बाए को कीमत दे दे क़ब्ल तफ़र्रुक़िहिमा, उन दोनों के जुदा होने से पहले। कौन दोनों? बाए और मुश्तरी। वयजूज़ु सलमु फ़ी शैइन यक़बिदुहु अज्ज़ाअन मुतफ़र्रिक़तन, और सलम जायज़ है और बे सलम जायज़ है उस चीज़ में भी जिसको मुतफ़र्रिक़ अज्ज़ा में हासिल करता हो, जिसको मुतफ़र्रिक़ अज्ज़ा में हासिल करे। फ़ी औक़ातिन मालूमा, मालूम वक्त में, मालूम औक़ात में। और बे सलम जायज़ है उस चीज़ में जिसको मुतफ़र्रिक़ अज्ज़ा में वो अपने कब्जे में लेता हो, जिसको मुतफ़र्रिक़ अज्ज़ा की सूरत में अपने कब्जे में लेता हो। फ़ी औक़ातिन मालूमा, मालूम औक़ात में। उसके बाद दूसरी बात, व इन अस्लमा समनन वाहिदन फ़ी शैअैनि लम यजुज़, और अगर वो बे सलम करे एक कीमत के जरिए दो चीज़ों में, और अगर वो बे सलम करे एक कीमत के बदले दो चीज़ों में, लम यजुज़ तो जायज़ नहीं है। हत्ता युबय्यिना समना कुल्ली जिन्सिन, यहाँ तक के हर जिन्स की कीमत बयान कर दे, यहाँ तक के हर जिन्स की कीमत बयान कर दे, वाज़ेह कर दे। और अगर वो बे सलम करे एक कीमत के जरिए दो चीज़ों में तो वो जायज़ नहीं, यहाँ तक के वो हर जिन्स की कीमत बयान कर दे। वमन अस्लम फ़ी शैइन, और जो किसी चीज़ में बे सलम करे, लम यस्रिफ़हु इला गैरी, तो उसे दूसरी चीज़ की तरफ नहीं फेरेगा। और जो किसी चीज़ में बे सलम करे वो उसे दूसरी चीज़ की तरफ नहीं फेर सकता या नहीं फेरेगा। वलम यजुज़ लहू बैउहु क़ब्ल क़ब्ज़िही, और उस पर कब्जा करने से पहले उसे बेचना उसके लिए जायज़ नहीं। वलम यजूज़ लहू, और जायज़ नहीं है उसके लिए, बैउहु उसका बेचना, क़ब्ल क़ब्ज़िही उस पर कब्जा करने से पहले। वलल हवालतु बिही, ना ही उसको हवाला करना, दूसरे के हवाले करना जायज़ है। वलल हवालतु बिही, और ना ही उसे दूसरे के हवाले करना जायज़ है, यानी उसे बेचना भी जायज़ नहीं और दूसरे की तरफ फेरना भी जायज़ नहीं, दूसरे के हवाले करना भी जायज़ नहीं। व तजूज़ुल इक़ालतु फ़ीही, और उसमें इक़ाला यानी फस्ख करना जायज़ है, और उसे फस्ख करना या उससे वापिस होना, उससे वापिस मुड़ना, उसे छोड़ देना, नतीजा है फस्ख करना। और उसमें इक़ाला यानी उसे फस्ख करना या वापिस मुड़ना जायज़ है। औफी बाद ही, पूरी बै में या फिर उसके बाद हिस्से में, लिअन्ना फस्खुन, इसलिए कि वो फस्ख होगा, इसलिए कि वो फस्ख होगा। बाबु सलमी, सलम ये सल्लमा से है, वालेकुम सलाम। सलम और सलफ
یہ دو الفاظ استعمال کرتے ہیں اور دونوں ایک ہی معنی میں ہیں، سلم بھی اور سلف بھی. اگر باب السلم کی جگہ باب السلف بھی رہے گا تو ایک ہی بات ہوگی. جی بعض لوگ کہتے ہیں کہ اہل حجاز اس کو السلم بولتے ہیں اور اہل عراق اس کو السلف بولتے ہیں. عراق والے اس کو السلف کا لفظ استعمال کرتے ہیں اور اہل حجاز السلم کا لفظ استعمال کرتے ہیں. لیکن محققین کہتے ہیں کہ یہ بات درست نہیں ہے، بلکہ لغت ہی میں یہ دونوں الفاظ استعمال ہوتے ہیں اس بے کے لیے، لغت ہی میں، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اہل حجاز میں تھے، لیکن آپ نے اس کے لیے جہاں سلم کا لفظ استعمال کیا وہیں سلف کا لفظ استعمال کیا. آپ نے دونوں الفاظ استعمال کیے. تو اس کا مطلب یہ کہ کسی مقام کے اعتبار سے لفظ کا فرق نہیں ہے، بلکہ وہ دونوں الفاظ اس کے لیے استعمال ہوتے ہیں، چاہے وہ سلم ہو چاہے وہ سلف ہو. یہ سلمہ سے ہے، سلمہ سے ہے، اور یہ اس کے معنی ہے کسی چیز کا دے دینا، کسی چیز کو کسی چیز کا حوالے کرنا اور کوئی چیز دے دینا، اس کو کہتے ہیں سلم. سلم یہ سلمہ سے ہے جس کے معنی ہے کسی چیز کو دینا، کوئی چیز حوالے کرنا. یہ اس کے لغوی معنی ہیں. اور اصطلاح میں کہتے ہیں عقد علی موصوف فی الذمتی. آپ لکھ سکتے ہیں عقد عین قاف دال علی موصوف، وہی موصوف صفت والا، علی موصوف فی الذمتی، عقد علی موصوف فی الذمتی مؤجل حمزے کے ساتھ، مؤجل حمزے کے ساتھ، واو لکھیے پھر اس کے پر حمزہ لکھیے، عین کے ساتھ مت لکھیے، حمزے کے ساتھ. علی موصوف فی الذمۃ مؤجل بثمن مقبوض فی مجلس العقد، بثمن مقبوض فی مجلس العقد، مقبوض قبضے سے ہی ہے، مقبوض فی مجلس العقد، فی مجلس العقد، عقد علی موصوف فی الذمۃ مؤجل بثمن مقبوض فی مجلس العقد. بیع سلم ایک ایسا عقد ہے، بیع سلم ایک ایسا عقد ہے علی موصوف جو ایسی چیز کے بارے میں ہوتا ہے جس کی صفات بیان کی گئی ہوں، ایسی چیز کے بارے میں ہوتا ہے جو جس کی صفات بیان کی گئی ہوں، فی الذمتی جو اس کے ذمے ہوتا ہے، جو بائع کے ذمے ہوتا ہے، بائع کے ذمے ہوتا ہے، مؤجل بعد میں، جو بائع کے ذمے ہوتا ہے بعد میں، بثمن مقبوض اس قیمت کے بدلے میں جس پر قبضہ کیا جاتا ہے، فی مجلس العقد عقد کی مجلس ہی میں، عقد کے وقت ہی، مجلس عقد ہی میں. پھر ایک بار دیکھ لیجئے، بیع سلم ایک ایسا عقد ہے جو کسی ایسی چیز کے بارے میں ہوتا ہے جس کے اوصاف بیان کیے گئے ہوں، فی الذمتی جو بائع کے ذمے ہوتی ہے، مؤجلین بعد میں، جو بائع کے ذمے ہوتی ہے بعد میں، جس کا دینا بائع کے ذمے ہوتا ہے بعد میں، بثمن مقبوض ایسی قیمت کے بدلے جس پر قبضہ کیا جاتا ہے، فی مجلس العقد مجلس عقد ہی میں، جس میں عقد ہوتا ہے اسی مجلس میں اس پر قبضہ کیا جاتا ہے. تو گویا ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بیع سلم پیش کی قیمت دے کر ایک معلوم اور متعین مدت تک کے لیے کسی چیز کا سودا طے کرنا، پیش کی قیمت دے کر ایک معلوم اور متعین مدت تک کے لیے کسی چیز کا سودا طے کرنا، اس کو کہتے ہیں بیع سلم. اس پر آپ غور کیجئے، یہ عقد ہے، ایک ایگریمنٹ ہے یہ، ٹھیک ہے. جب ایگریمنٹ ہے تو اس میں دو طرف ہیں، ایک طرف ہے بائع اور دوسرا طرف ہے مشتری. اس میں جو ہے بائع جو مشتری ہے اس کو کہتے ہیں مسلم. بیع سلم میں جو مشتری ہے اس کو مسلم کہتے ہیں کیونکہ وہ قیمت دینے والا ہے، اور جو مشتری ہے اس کو مسلم کہتے ہیں، جو بائع ہے مسلم الیہ جس کے حوالے قیمت کی گئی ہے، قیمت جس کے حوالے کی گئی ہے. بائع کو کیا کہتے ہیں؟ مسلم. اور جو نہیں مسلم ہے، مسلم جیسے مسلم لفظ ہے وہی مسلم ہے، مسلم دینے والا. ہاں مشتری مسلم ہے اور بائع مسلم الیہ ہے، بالکل مسلم الیہ
मुस्लम इलैह जिसके हवाले की गई, कीमत जिसके हवाले की गई, और वो जो सामान और चीज है वो है मुस्लम फी, मुस्लम फी, और जो कीमत है वो रासुल माल है। रासुल माल बोलिए उसको, जो कीमत है वो रासुल माल है। तो इसके जो है ये अरकान हो गए। मुश्तरी मुस्लिम है, मुस्लम इलैह, और वो चीज, और मुस्लम, मुस्लम लाम के फतह के साथ, बाकी मुस्लिम है। जी हाँ, तो बै सलम में जो मुश्तरी है उसको मुस्लिम कहते हैं, और जो बाय है उसको मुस्लम इलैह कहते हैं, और जो सामान या चीज है उसको मुस्लम फी कहते हैं, और जो कीमत है उसको रासुल माल कहते हैं। ठीक है, तो इसमें जो अरकान है, बै सलम के जो अरकान है उसमें ईजाब व कबूल है। पहली चीज है ईजाब व कबूल। ईजाब ये है कि जो मुस्लिम है मुश्तरी वो कहे कि असलफ्तु या असलमतु का, यानी मैं तुमको पेज की कीमत देता हूं, पेज की कीमत देता हूं किसी भी अल्फाज के साथ, यह है ईजाब, और वो उस कीमत को ले ले या कहे कि ठीक है। कौन? मुस्लिम इलैह, मुस्लिम इलैह यानी बाय। ठीक है, ये पहली चीज है जिसको ईजाब व कबूल कहते हैं। ये पहला रुकन है बै सलम में, और इसमें जो है दो तरफों का होना जरूरी है। जब ये अक्द है तो इसमें आकिदान होना जरूरी है, दो तरफ इनका होना, बाय और मुश्तरी, मुस्लिम और मुस्लिम इलैह, ये दो तरफ का होना जरूरी है। और फिर तीसरा रुकन है इसमें कीमत, जिसको हम मुस्लिम फी कह रहे हैं, जिसको रासुल माल कह रहे हैं, और फिर वो चीज जिसको हम क्या कह रहे हैं, अल मुस्लिम फी कहते हैं, मुस्लिम फी कह रहे हैं। ठीक है, अल्फाज थोड़ा सा मुश्किल हो रहे हैं, वजाहत हो रही है साफ साफ। ठीक है, तो ये अरकान है, ये अरकान है बै सलम के। ये बै सलम जायज है, बै सलम जायज है क्योंकि हाजत इसका मुतालबा करती है। बुनियादी तौर पर जायज इसलिए है कि कुरान मजीद में इसकी तरफ इशारा किया गया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा तदायनतुम बिदैनिन इला अजलिन मुसम्मन फक्तुबू, ईमान वालो जब तुम कोई खर्च का मामला लेन देन करना चाहते हो एक मुकर्रर मुद्दत तक के लिए तो उसे लिख लो। तो बुनियादी तौर पर यह बात मालूम होती है कि खर्च का मामला जायज है। तो अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला ने इस आयत से दलील ली है, ये आयत पढ़कर कहा कि यही बै सलम है। इसमें सामान कर्ज होता है, सामान बाद में दिया जाता है लेकिन कीमत पेशगी दी जाती है। लेकिन एक तरह से ये कर्ज का मामला है जो इस आयत से मालूम होता है कि वो चीज जायज है। और दूसरी दलील ये हदीस है जो अभी यहाँ हमारे सामने मज़कूर है, मन असलफ फी समरिन, जो किसी फल में बै सलफ करे, फल युस्लिफ फी कैलिन मालूमिन, तो उसे चाहिए कि वो मालूम नाप में और मालूम वजन में एक मुकर्रर मुद्दत तक के लिए वो बै सलफ करे। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना तशरीफ लाए तो मदीने के लोग चूंकि खेती बाड़ी करते थे, साहिब ज़िराअत थे, तो आपने देखा कि वो लोग इस तरह सलफ किया करते हैं, बै सलम किया करते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों की हाजत के पेश नजर और बुनियादी तौर पर बै के जो उसूल व ज़वाबित हैं उसके मुखालिफ न होने की वजह से उसे बाकी रखा। अलबत्ता आपने उसमें कुछ ऐसे उसूल वाज़ेह कर दिए, ऐसे उसूल बता दिए जिसकी वजह से इख्तलाफ खत्म हो जाए और ये बै मामूल की बै बन जाए और उसमें किसी किस्म का कोई इख्तलाफ या धोखा या जुल्म न हो। ये आपने उसका इजाफा कर दिया, लेकिन आपने उसको बाकी रखा। तो सुन्नत से भी ये साबित है और इज्माई उम्मत भी है। इसमें जो इख्तलाफ है वो नाकाबिले कबूल है, यानी वो इख्तलाफ ऐसा है जिसका नाकाबिले एतबार है। हाँ, लेकिन नाकाबिले एतबार है, यानी ऐसा नहीं कि जिसको हम कहें कि इख्तलाफ है। इसको हम कह सकते हैं कि इज्मा है, उम्मत का इज्मा है। और चौथी बात यह है कि ये इंसानी हाजत इसका मुतालबा करती है। मिसाल के तौर पर कभी ऐसे होता है कि किसी किसान को अपने खेत में अनाज के लिए, अपने खेत में गल्ला डालने के लिए, बीज बोने के लिए पैसों की जरूरत है। वो किसी ऐसे शख्स से ताल्लुक कायम करता है या ऐसे शख्स की जरूरत पैदा करता है जिसके पास पैसे हैं। तो वो किसान की जरूरत है कि अब उसे पैसे फराहम हो ताकि वो उसमें खेती कर सके। तो वो उस शख्स के पास आता है, तो वो शख्स कहता है कि ठीक है मैं तुम्हें पैसे दूंगा, लेकिन इस शर्त पर के जब तुम्हारे पास फसल पैदा हो जाएगी तो उस वक्त तुम मुझे अपनी ये जो पैसे मैं दे रहा हूं उसके तुम मुझे फसल दे दोगे, उसके बदले गल्ला दे दोगे।
तो इस तरह दोनों की जरूरत पूरी हो जाती है। किसान को पैसों की जरूरत थी, उसको पैसे फराहम हो गए, और इस शख्स की जरूरत, इसको सामान की जरूरत है, इसका सामान मिल गया। और इसमें फायदा भी इस तरह होता है कि उसको तो पैसे मिल गए ताकि वो अपना काम कर सके, और इसको वो सामान कुछ कम कीमत पर मिल जाता है, क्योंकि जब जाहिर है कि जब पैसे उसने पहले दे दिए तो कीमत, वो सामान कम कीमत पर लेगा। तो इस वजह से इसमें चूंकि मसलिहत है, इस वजह से इसे जायज करार दिया गया। लेकिन इसके कुछ शुरूत हैं, शुरूत के साथ जायज किया गया, ताकि किसी किस्म का कोई धोखा न रहे, और किसी किस्म का कोई जुर्म न रहे, और किसी किस्म का कोई इख्तिलाफ बाकी न रहे। उसमें पहली शर्त यह है कि जो चीज खरीदी जा रही है, एक है समन, उसको हम कहते हैं कीमत, और दूसरी चीज है वो सामान, जिसको हम कहते हैं मुस्मन। अब मैं वही लफ्ज़ इस्तेमाल करूंगा इसके दौरान, तो इसलिए याद रखें मुस्मन। मुस्मन वो जिसकी कीमत दी गई, जिसकी कीमत दी गई वो क्या है? सामान, ठीक है, वो सामान या वो चीज, ठीक है। तो पहली शर्त यह है कि मुस्मन के औसाफ वाज़ेह तौर पर बयान किए जाएं। मुस्मन के औसाफ वाज़ेह तौर पर बयान किए जाए। मिसाल के तौर पर यह बयान किया जाए कि ये फला चीज है। अगर हम कहें कि ये गाड़ी है, गाड़ी उसको चाहिए, तो कहे कि ये गाड़ी है, इस मॉडल की गाड़ी हो, उसका ये रंग हो, और उसमें फला और फला चीजें जितनी भी उसकी खुसूसियात होती हैं वो सारी वाज़ेह करें। तो पहली शर्त यह है कि मुस्मन के औसाफ वाज़ेह तौर पर मुतय्यन किए जाएं, औसाफ मुतय्यन किए जाएं, ये पहली शर्त है। और दूसरी शर्त यह है कि जो चीज मतलूब है उसकी जिन्स और उसकी कीमत और उसकी नौयत को बताया जाए। मिसाल के तौर पर खजूर चाहिए, तो बताएं कि ये खजूर है और ये इस नौयत की है, सुक्करी है या अजवा है या अंबर है। खजूर, एक तो खजूर उसकी जिन्स बता दी जाए कि खजूर चाहिए या फिर जो है जवार चाहिए, चावल चाहिए, उसके साथ उसकी नौयत भी बता दें किस किस्म का है। सोना है, चावल है तो कौन सा चावल है, गेहूं है तो कैसे चावल है, कैसे गेहूं है, और इसी तरह खजूर है तो कौन सी नौयत के खजूर है। यह दूसरी शर्त है कि उसकी जिन्स और नौयत को मुतय्यन किया जाए, बताया जाए। और तीसरी चीज है कि मिकदार मुतय्यन की जाए कि कितनी मिकदार में वो लेंगे। 10 किलो, 100 किलो, 1000 किलो, 500 किलो, मिकदार मुतय्यन होना जरूरी है। या अगर गाड़ी है तो एक गाड़ी, 2 गाड़ी, कपड़े हैं तो कितना कपड़ा, ऐसा। उसके बाद चौथी शर्त यह है कि मुद्दत मालूम हो। मुद्दत मालूम है, मिसाल के तौर पर ये पेट की कीमत मैं दे रहा हूं और इसके बदले तुम मुझे सामान दोगे शाबान की फलां तारीख को, या शाबान के महीने में, या रजब के महीने में। ये मुद्दत मुतय्यन हो, मुद्दत मुतय्यन हो, ये चौथी शर्त है। और पांचवी शर्त यह है कि पूरी कीमत अक़द की मजलिस ही में हासिल कर ली जाए। पूरी कीमत, इसमें कीमत पूरी की पूरी, फिसवार नहीं, बल्कि पूरी कीमत एक साथ, समन पूरा का पूरा और पूरी की पूरी कीमत एक साथ मुस्लिम इलैह के हवाले कर दी जाए, एक साथ बाए के हवाले कर दी जाए, ठीक है। पूरी की पूरी कीमत मजलिस अक़द में, या तो मजलिस अक़द से मुराद ये है कि जब उन्होंने एक साथ बैठकर तय किया उस वक्त, या फिर ये कि जब तक वो दोनों जुदा नहीं होते। ये भी हो सकता है कि वो दोनों आपस में तय करते हैं कि मैं आपको ये चीज दूंगा 1 साल के बाद। वो कहेगा कि ठीक है मैं आपको ये पैसे दे रहा हूं, लेकिन पैसे मेरे पास नहीं, मेरे साथ मेरे घर चलिए। तो उसके बाद दोनों मिलकर घर पर गए, तो जब तक एक साथ हैं तो गया वो एक ही मजलिस में है, एक ही मजलिस में है, ठीक है, लेकिन पूरी कीमत हो। और फिर क्योंकि यहां मैं एक बात वादे कर दूं कि हम जो मामलात करते हैं, जो हम उक़ूद, जो अक़द होते हैं कारोबार के, वो 4 तरह के हैं। एक अक़द हालुन बिहाल, यानी दस्त बदस्त है। हम दुकान जाते हैं, इधर पैसा देते हैं, उधर सामान खरीदते हैं, तो ये वाज़ेह तौर पर हलाल है, जायज है, क्योंकि इस हाथ हम कीमत देते हैं, उस हाथ सामान खरीदते हैं। ये पहली किस्म है। हमारे कारोबार के अक़द की पहली किस्म ये है कि हम दस्त बदस्त मामला करते हैं। दूसरी किस्म ये है कि उसमें कीमत भी बाद में दी जाएगी और सामान भी बाद में दी जाएगी, दोनों मुअज्जल हों हमदे के साथ। कीमत भी मुअज्जल हो, कोई शख्स कहे कि मैं तुमको आज से 6 महीने के बाद 1000 रियाल देता हूं ताकि तुम मुझे 1 साल के बाद मुझे तुम इतने किलो जो है गेहूं दो, 100 किलो गेहूं दो, इस तरह किसी के साथ ये मामला करें। या मैं 6 महीने के बाद देखिए 50,000 रियाल देता हूं
ताकि 1 साल के बाद आप मुझे फलां मॉडल की गाड़ी फराहम करें। कीमत भी मुअज्जल है हमसे के साथ, और जो सामान है वो भी मुअज्जल है। ये हराम है, बहुत से लोग इस तरह का मामला करते हैं, लेकिन ये हराम है, ठीक है, क्योंकि इसमें बुनियादी तौर पर रिबा का भी इम्कान पाया जाता है, और इसमें गरर भी है, और इसमें बहुत सी खराबियां पाई जाती हैं। तो ये दूसरी किस्म है। दूसरी किस्म ऐसी कि उसमें कीमत भी मुअज्जल है हमसे के साथ और सामान भी मुअज्जल है, ये हराम है। इसको बैउल काली बिल काली कहते हैं। अलकाली हमजे के साथ, लाम या के पर हमजा, अलकाली बिल काली, तो ये जायज नहीं। तीसरी किस्म कोई मसला नहीं, वो आएगा हमारे पास, वो आएगा हमारे पास। अलिफ लाम काफ, अलिफ लाम के बाद या लिखिए, उसके पर हमजा लगाइए, अलकालिउ बिल काली, अलकालिउ बिल काली, दोनों चीजें मुअज्जल हो, ये जायज नहीं। तीसरी चीज ये है कि उसमें कीमत मुअज्जल हो, कीमत मुअज्जल आयन के साथ हो, पहले दे दी जाए कीमत आयन के साथ, और हाँ जो समन मुअज्जल हो और मुस्मन हमजे के साथ हो मुअज्जल। ये क्या है? ये नहीं, ये यही सलम है, यही सलम, माशाल्लाह, यही, ये आप लोग क्लास में साथ रहिए, यही सलम है। इसमें कीमत मुअज्जल है आयन के साथ, फौरन दे दी जाती है, और सामान मुअज्जल है हमजे के साथ, जो बाद में दिया जाता है, तो ये जायज है, यही सलम है, ठीक है। और चौथा अक्द ये है कि उसमें सामान मुअज्जल होता है आयन के साथ, और जो समन है मुअज्जल होता है, बाद में दिया जाता है, और ये बहुत होता है मामला, जायज है, जायज है। जिसमें आदमी किसी के पास से सामान ले लेता है उधार पर, और बाद में 1 साल के बाद, 1 महीने के बाद, जो भी वक्त आता है उसको कीमत देता है, जायज है, कोई हर्ज नहीं, क्योंकि खर्च ले रहे हैं। चौथी किस्म यह है कि उसमें सामान मुअज्जल होता है, सामान मुअज्जल यानी आयन के साथ होता है, जिसमें सामान लिया जाता है, और कीमत मुअज्जल होती है हमजे के साथ, जिसमें कीमत बाद में दी जाती है, तो ये जायज है। तो नहीं, वैसे इस्तिलाही नाम नहीं है, लेकिन कारोबार में खरच के साथ मामला करते हैं, कोई हर्ज नहीं उसमें। ये 4 उकूद हैं, ये 4 तरह के अक्द होते हैं, उसमें से दूसरा नाजायज है, बाकी ये जायज है, ठीक है। तो 5वीं शर्त मैंने क्या जिक्र की थी बै सनम की? हाँ, पूरी कीमत मजलिस अक्द में हासिल कर ली जाए। छठी शर्त बयान करते हैं इल्म, वो ये कि जो मुस्लिम फी है, जिसको हम मुस्लिम फी भी कहते हैं, जिसको मुस्मन भी कहते हैं, वो चीज उसको फराहम करना मुमकिन हो, उसको फराहम करना मुमकिन हो। यानी मिसाल के तौर पर एक ऐसी चीज जिसको फराहम करना मुमकिन ना हो, उसमें बै सलम नहीं हो सकती, जिसको फराहम नहीं किया जा सकता। उसको जिस चीज को फराहम करना मुमकिन है, जैसे उसके पास अनाज पैदा होगा, उसी में बै सलम की जाएगी। उसको फराहम करना मुमकिन हो उस वक्त जो मुद्दत मुतयन की गई, उस वक्त जो मुद्दत मुतयन की गई है, उस मुद्दत में उसको फराहम करना मुमकिन हो, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर जो अनाज है, आम तौर पर चावल है या फिर गेहूं है, ये पैदा होते हैं गर्मियों में, बारिश के बाद, है ना। हमारे पास मौसम पहले सर्दी का आता है, फिर उसके बाद बारिश होती है, फिर गर्मी होती है, तो उसमें जो अनाज पैदा होता है, तो अगर उसका उसके उन सामान को लेने की मदद अगर सर्दी के महीने तय किए जाएंगे, तो ये बै सलम जायज नहीं होगी, क्योंकि उसमें तो फराहम करना मुमकिन नहीं है ना। इसी तरह कुछ फल हैं जो कि सर्दी में पैदा होते हैं, लेकिन अब उसके लिए जो मुद्दत मुतयन की जा रही है वो गर्मी के महीने की मुद्दत है, तो वो बै सलम उसमें नहीं होता, क्योंकि उसको उस महीने में उस सामान को फराहम करना उसके लिए मुमकिन, ठीक है। और छठी शर्त ये बताते हैं अहले इल्म, 7वीं होती है ना, हाँ 7वीं शर्त ये बताते हैं कि वो चीज उसके मुस्लिम इले या बाए के जिम्मे में हो, उसके जिम्मे हो, वो चीज मौजूद ना हो, वो चीज मौजूद नहीं है, बस उसके जिम्मे में है कि वो चीज ला कर देगा। मिसाल के तौर पर हम ये नहीं कह सकते कि तुम्हारी जो गाड़ी है अब जो तुम चला रहे हो, उस गाड़ी को मैं 1 साल बाद देता हूं, पैसे अब मेरे ले लीजिए, बै सलम नहीं हो सकता। मुतअय्यन में बै सलम नहीं हो सकती, वो मुतअय्यन है। मुअय्यन में बै सलम, देखिए बै सलम होती है जिसमें जो सिफात के साथ मुत्तसिफ, उसे सिफात के साथ बयान किया जाता है, मुअय्यन नहीं किया जा सकता। अब किसी आदमी के पास कोई गाड़ी है, वो मेरे सामने है, मुअय्यन है वो, उसमें बै सलम नहीं हो सकती। बै सलम ऐसी चीज में होती है जिसके सिर्फ सिफात मालूम है, हमको सिफात बयान करते हैं हम लोग, लेकिन वो चीज अभी है नहीं,
وہ اس کے ذمے ہے وہ چیز وہ فراہم کرنا. تو بیع سلم کی شرط، بیع سلم کی 7ویں شرط یہ ہے کہ وہ چیز جو ہے وہ چیز اس کے ذمے میں ہو اور وہ معین نہ ہو بلکہ اس کے اوصاف واضح کیے جائے. ٹھیک ہے، مسلم الیہ یا پھر بائع کے ذمے ہو، اس کو فراہم کرنا اس کے ذمے ہو لیکن وہ پہلے سے موجود نہ ہو. نہیں، یہ بیع سلم نہیں ہوگی. جی ہاں بالکل. ہاں دیکھیے اس واسطے دیکھیے ہم تعریف میں کیا کیے، عقد علی موصوف کہے. ایک ایسا عقد ہے جو ایسی چیز کے بارے میں ہوتا ہے جس کے صفات بیان کیے گئے ہیں، متعین نہیں کیا گیا کیونکہ وہ چیز ابھی موجود نہیں ہے، بعد میں وہ فراہم کرے گا تو وہ اس کے ذمے میں ہے، بائع کے ذمے میں ہے. تو یہ 7 شرطیں اہل علم بیان کرتے ہیں. بعض شرطوں میں اختلاف ہے، وہ میں انشاءاللہ سبق کی تشریح کے دوران بتاؤں گا. ٹھیک ہے. نہیں یہ بے نہیں ہوا نا، یہ تو پیسوں کا پیسے سے تبادلہ ہوا، سامان کا خرید و فروخت نہیں ہوا. دیکھیے ایک بات اچھی طرح یاد رکھیے، بیع سلم 2 ایسی چیز میں جائز نہیں ہے، یہ بہت اہم نقطہ ہے، جس میں ربا نسیئہ ہو سکتا ہے. مثال کے طور پر 2 ایسی چیزیں، گیہوں کو ہم چاول کے بدلے، گیہوں کو کھجور کے بدلے ہم لینا چاہیں، ٹھیک ہے، تو جب گیہوں کو ہم اس کے بدلے لیتے ہیں کھجور کے بدلے تو کمی زیادتی تو ہو سکتی ہے نا، لیکن تقابض شرط ہے، ہم لوگ پڑھ چکے ہیں اس میں، ایک ہی مجلس میں تقابض ہونا چاہیے، تقابض اس میں شرط ہے، ایک ہی مجلس میں اس میں تقابض ہوگا. تو 2 ایسی چیزیں جس میں ربا نسیئہ ہو سکتا ہے اس میں بیع سلم نہیں ہو سکتی. 2 ایسی چیزیں جس میں ربا نسیئہ مدت کا سود ہو سکتا ہے نا، اس میں بیع سلم نہیں ہو سکتی. بیع سلم یا پیسوں کے بدلے میں سامان کے ذریعے نہیں ہوتی ہے، سامان کے بدلے میں نہیں ہو سکتی، خاص طور کیونکہ اس میں وہ سامان آ جائیں گے جس میں ایک دوسرے میں ربا پایا جاتا ہے. تو اس لیے پیسوں میں بیع سلم نہیں ہے، کیونکہ وہ تو سود ہو جائے گا واضح طور پر. سامان اور قیمت، یعنی قیمت دے دی جائے سونے کی قیمت صورت میں یا چاندی کی صورت میں یا ریال کی صورت میں، ڈالر کی صورت میں، جو بھی ہے نقدی اس کو دی جائے. ہاں بالکل. عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال، ٹھیک ہے. تو اس کو بیع سلم اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں راس المال مجلس میں دے دیا جاتا ہے، حوالے کیا جاتا ہے. اس کو بیع سلف کہتے ہیں، سلف کے معنی پہلے کے ہیں، اور اس میں راس المال پہلے ہوتا ہے اس لیے اس کو بیع سلف بھی کہتے ہیں. تو سلم اور سلف دونوں کے اعتبار سے یہ بیع ہوتی ہے. عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال، عبداللہ ابن عباس اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں، قدیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے، مدینہ تشریف لائے. وہم یسلفون فی الثمار، اور لوگ پھلوں میں 1-2 سال، سنت و سنتین، 1-2 سال پیشگی قیمت دے کر بیع سلف کرتے تھے، اور 1-2 سال پیشگی قیمت دے کر پھل لیتے تھے، 1-2 سال پیشگی قیمت دے کر پھل لیتے تھے. فقال، آپ نے فرمایا، من اسلف فی ثمن، جو کسی پھل میں یا کھجور میں، فی تمرن، کھجور میں بیع سلف کرے تو وہ معلوم ناپ میں اور معلوم وزن میں مقرر مدت تک کے لیے کرے. واضح ہے نا، ضروری ہے کہ معلوم ہو کہ اتنے کلو ہیں، معلوم ہو کہ وہ اتنے سیر ہیں اگر وہ ناپ ہے، اور یہ معلوم ہو کہ کس مدت میں اس کو دیں گے. وَيَصِحُّ السَّلَمُ فِي كُلِّ مَا يَنْضَبِطُ بِالصِّفَةِ، اور بیع سلم صحیح ہے ہر اس چیز میں جو صفت کے ذریعے واضح ہوتی ہو، منضبط ہوتی ہو، صفت کے ذریعے منضبط ہوتی ہو. اذا ضبطه بها، جب وہ اس کو منضبط کرنا چاہے. یہ پہلی شرط ہوگی، اوصاف معلوم ہو. جس چیز میں ہم بیع سلم کر رہے ہیں تو اس چیز کے اوصاف معلوم ہو. جس چیز کے اوصاف معلوم نہیں ہو سکتے اس میں بیع سلم نہیں ہو سکتی. مثال کے طور پر کھجور کے درخت کے بارے میں اگر کوئی بیع سلم کرنا چاہے تو اس کے اوصاف تو متعین نہیں کر سکتے، کیونکہ درخت کا اگانا تو اس کے ہاتھ میں نہیں ہے. وہ چھوٹے بڑے ہو سکتے ہیں، کوئی اچھے ہو سکتے ہیں، کوئی کم کھجور والے ہو سکتے ہیں. اور اسی طرح جو جواہرات سمندر سے نکالے جا سکتے ہیں اس میں بیع سلم نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ نکلے گئے تو وہ کیسے ہوگا یہ نہیں، تو اس کے اوصاف متعین نہیں کیے جا سکتے. تو جن چیزوں کے اوصاف متعین نہیں کیے جا سکتے ان چیزوں میں بیع سلم جائز نہیں ہے. نہیں، ہاں اس میں 2 اقوال ہیں اہل علم کے 2 اقوال ہیں. ایک قول یہ ہے کہ صرف پھلوں میں اور غلے میں ہے، پھلوں اور اناج ہی میں ہے. دوسرا قول یہ ہے کہ یہ
ہر اس چیز میں ہے جس کو صفت کے ذریعے مقرر کیا جا سکتا ہے، اس کے اوصاف کو متعین کیا جائے، چاہے وہ حیوانات ہوں یا پھر سامان ہو، کپڑے ہوں، کوئی بھی چیز ہو، اسی طرح غلہ ہو یا پھر جو ہے پھل ہو، ہر چیز میں بیع سلم ہو سکتا ہے۔ مؤلف رحمۃ اللہ علیہ وہی کہتے ہیں اور یہی راجح ہے، راجح بات یہی ہے کہ بیع سلم ہر اس چیز میں ہو سکتی ہے جس کو صفات کے ذریعے واضح کیا جا سکتا ہو، جن کو صفات کے ذریعے واضح نہیں کیا جا سکتا اس میں بیع سلم نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے۔ دوسری شرط ہے وَذَكَرَ قَدْرَهُ بِمَا يُقَدَّرُ، اور وہ ذکر کرے اس کی مقدار کو جس چیز کے ذریعے اس کی مقدار بیان کی جا سکتی ہو۔ اگر وہ ایسی چیز ہے جسے ناپا جاتا ہے، جیسے پہلے تیل ہوتا تھا 1 سیر 2 سیر، تو اتنا اس کے ناپ کے ذریعے اس کی مقدار بتائے، اتنے سیر 100 سیر۔ اور اگر وہ چیز ایسی ہے جس کو وزن کیا جا سکتا ہے تو یہ بتائے کہ اتنے کلو، 100 کلو مثلا۔ او زرعین، اور اگر اس چیز کو جو ہے ماپا جاتا ہے، جیسے کہ کپڑا ہے یا پھر رسی ہے، تو متعین کرے کہ 100 ہاتھ، یا پھر جو ہے جو بھی ماپ کے آج کل الفاظ استعمال ہوتے ہیں وہ تمام چیزیں۔ او عدن، اور اگر وہ چیز ایسی ہے جن کو گنا جاتا ہے تعداد میں، جیسے کہ ناریل ہے 100 ناریل، یا انڈے ہیں 1000 انڈے، اس طرح۔ تو جس طرح سے اس کی مقدار کو بیان کیا جا سکتا ہو اس طرح اس کی مقدار کو متعین کریں۔ جی کیا سوال تھا آپ کا؟ بالکل بالکل جانور آئے گا۔ دیکھیے جانور میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ مذکر ہے، مؤنث ہے، اور اتنے 3 سالہ ہو، مذکر ہو، مؤنث ہو، یہ اس کے اوصاف بھی بیان کریں گے، پھر اس کے بعد یہ طے کریں گے کہ وہ 100 ہوں 200 ہوں، اس طرح، ٹھیک ہے۔ واضح ہو گیا؟ وَجَعَلَ لَهُ أَجَلًا مَعْلُومًا، اور اس کی مدت مقرر کرے اور وہ مدت معلوم ہو۔ یہاں جو ہے آپ غور کیجئے، 2 باتیں ہیں، ایک یہ کہ وَجَعَلَ لَهُ أَجَلًا، اور اس کی مدت مقرر کرے۔ معلوماً معلوم، تو اجلاً یہ ایک شرط ہے اور معلوماً یہ ایک شرط ہے، یا پھر اجلاً معلوماً یہ دونوں مل کر صرف معلوم مدت مقرر کرے یہی ایک شرط ہے؟ اس بارے میں اہل علم کا اختلاف ہے۔ جن علماء نے کہا کہ اس کی وہ بیع سلم صرف اسی چیز میں ہو سکتی ہے جو بعد میں حاصل کی جائے، تو انہوں نے اجل کو بھی ایک شرط مانا۔ مثال کے طور پر کوئی شخص کہے کہ جو ہے میں تم کو جو ہے 1000 ریال دیتا ہوں تاکہ تم مجھے 100 کلو کھجور دو، 100 کلو کھجور دو، 100 کلو کھجور، صفات ساری کے سارے بتا دے، اور وہ حال میں اسے مل سکتے ہوں، اسی وقت وہ کھجوروں کو دے سکتا ہو، تو کیا یہ بیع سلم ہوگی؟ تو بیع سلم تو نہیں ہوگی یہ، لیکن یہ بیع ہے، بیع ہو سکتی ہے وہ، لیکن بیع سلم نہیں ہو سکتی۔ تو اس لیے اجلن بعض اہل علم نے اس وجہ سے جو ہے بیع سلم کے لیے اجل کو بھی ایک شرط مانا ہے کہ وہ چیز ایسی ہو جس کے لیے جس کو بعد میں دینا طے پائے، بعد میں دینا طے پائے، اور پھر معلوماً کو ایک شرط مانا کہ وہ مدت جو ہے مقرر ہو، یا پھر جو ہے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کو مقرر، اگر جو اہل علم کہتے ہیں کہ اگر فی الحال بھی اگر دی جائے تو اس میں بیع ہو سکتی ہے، تو وہ لوگ جو ہے صرف اجلاً معلوماً کو ایک مان کر یہ شرط لگاتے ہیں کہ وہ اس کی مدت مقرر ہو۔ لیکن واضح طور پر جو بات بیع سلم کے زیادہ قریب ہے وہ یہ کہ وہ ایسی چیز ہو جو مؤجل ہو، بعد میں دی جائے، اور پھر وہ تاجیل کیا ہو؟ معلوم بھی ہو کہ وہ رجب کے مہینے میں ہو، شعبان کے مہینے ہو، فلاں مہینے میں ہو۔ اس کے بعد ہے وَآتَاهُ الثَّمَنَ قَبْلَ تَفَرُّقِهِمَا، اور اس کو قیمت دے دے ان دونوں کے جدا ہونے سے پہلے۔ یہ بھی 5ویں شرط ہے یا 4تھی شرط ہے، واضح ہے نا؟ وَيَجُوزُ السَّلَمُ فِي شَيْءٍ يَقْبِضُهُ أَجْزَاءً مُتَفَرِّقَةً، اور بیع سلم جائز ہے اس چیز میں جس کو وہ متفرق اجزاء کی صورت میں حاصل کرے، فی اوقات معلومہ، معلوم اوقات میں۔ اس کی شکل یہ ہے کہ کوئی شخص کسی شخص سے یہ طے کرے، یعنی مسلم الیہ سے طے کرے، سمجھ جائیں گے نا؟ مسلم الیہ سے طے کرے، مسلم کہے کہ میں آپ کو 2000 ریال دے رہا ہوں اور اس کے بدلے مجھے آپ 100 کلو گیہوں دیجئے، 100 کلو گیہوں دیجئے، جیسے مارچ میں 50 کلو دیجئے اور اس کے بعد دسمبر میں 50 کلو دیجئے۔ یا پھر کسی گوشت والے سے میں طے کروں کہ میں 1000 ریال دے رہا ہوں اور آپ جو ہے ہر ہفتہ پیر کے دن مجھے اس کے بدلے 10 کلو گوشت دے دیجئے، 100 کلو تک، 1000 ریال دے رہا ہوں، 100 کلو گوشت مجھے 10 کلو کے اعتبار سے دیجئے، اس کے حساب سے وہ طے کرے، یعنی کئی مدتیں طے کرے۔ اگر وہ مدتیں معلوم ہیں اور وہ مقدار معلوم ہے تو
तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि जब एक मुद्दत के लिए बै सलम हो सकती है तो कई मुद्दतों के लिए भी बै सलम हो सकती है। अज्जा मतलब ये कि उस चीज को मुख्तलिफ छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम करना, जैसे 100 किलो को जो है 100 किलो के 30 बना दिए, या फिर 120 किलो के 40 बना दिए। अच्छा, तो यूं नहीं कर सकते कि मैं तुम्हें 2000 दे रहा हूँ, 1000 की तुम मार्च में मुझे खजूरें दो और दूसरे 1000 की अगले महीने तुम मुझे गेहूं दे दो? नहीं, ये फिर बै सलम नहीं होगी। दूसरे 1000 की सलम जो दूसरी कीमत एक साथ मिल गई उनको, 1000 कीमत अलग नहीं मिली उनको, एक साथ कीमत दे गई, तो वो 2000 की जो चीज है उसको फिर वो चीज को वो कर सकते हैं। मुमकिन, हाँ, जुज बनाना है, यानी वो जी हाँ, चीज एक ही है लेकिन उसके एक ही चीज के मुख्तलिफ जुज बन गए, या मुख्तलिफ औकात में ले रहे हैं उसको, थोड़ा थोड़ा करके मुख्तलिफ औकात में ले रहे हैं, ये चीज जायज है। आएगा उसके बाद वाला वही है इंशाल्लाह, वही है। वो इन असलम समनन वाहिदन फी शैइन, वही बात यहाँ कह रहे हैं, देखिए, और अगर वो बै सलम करे एक कीमत के जरिए दो चीजों में, मिसाल के तौर पर कहे कि मैं तुम्हें 1000 रियाल दे रहा हूं, तुम मुझे 1 साल के बाद रमजान के महीने में गेहूं और चावल दो, गेहूं और खजूर दो, कोई भी चीज गेहूं और खजूर दो। तो ये इस तरह, वो इन असलमा समनन वाहिदन, और अगर वो एक कीमत दे फी शैइन, दो चीजों के बारे में, जैसे गेहूं और खजूर के बारे में, लम यजुज़, तो जायज नहीं होगा। जायज हो सकता है किस सूरत में, हत्ता युबय्यिना सबना कुल्ली जिन्सिन, यहां तक कि हर जिन्स की कीमत बता दे, बोले कि ये जो मैं 2000 रियाल दे रहा हूं, उसमें 1000 रियाल ये खजूर के लिए है और 1000 रियाल ये गेहूं के लिए है, और खजूर मुझे इतने किलो चाहिए, हर एक की मिकदार जरूरी है कि मिकदार हो, और फिर ये बता दे कि इतनी कीमत इसकी है, खजूर की 1000 रियाल है और मुझे 50 किलो चाहिए, और गेहूं के जो है 1000 रियाल है और मुझे 40 किलो चाहिए, ये मुतय्यन है। इस तरह कर आप कितनी भी चीजें मुकर्रर कर सकते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन जरूरी ये नहीं हो सकता कि कोई कह दे कि मैं तुमको 50,000 रियाल दे रहा हूं, आप मुझे 2 गाड़ियां लाकर दे दीजिए, एक टोयोटा कोरोला और एक कैमरी, ठीक है, ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि ये जरूरी है कि इसमें से मैं जो आपको दे रहा हूं उसमें से 40,000 फला गाड़ी के हैं और 10,000 फला गाड़ी के हैं, ये जरूरी है, ये उसके बाद वो जायज होगी। इसमें नहीं होगी, एक बै में 2 बै नहीं हुए, ये सलम है, एक ही कीमत एक है, लेकिन सामान अलग अलग चीजें हैं, तो अलग अलग सलम हो रहा है, सिर्फ कीमत एक साथ दे रहे हैं, एक ही बै है जी। नहीं, ये जायज मुतय्यन नहीं है ना, इसमें हर हाल में औसाफ मुतय्यन करेंगे और फिर हर चीज की कीमत बता देंगे, ये वो 2 गाड़ियों में से एक गाड़ी की कीमत इतनी हो, दूसरी गाड़ी की कीमत इतनी हो, और वो गाड़ी यही औसाफ की हो, जरूरी है ये बता दे कि वो मिकदार कितनी है, और फिर ये बता दे कि हर एक उसमें से हर चीज की कीमत क्या है, तब ये जायज है, वरना अगर ऐसी कीमत दे दें और बोले कि मुझे 2 चीजें चाहिए तो वो जायज नहीं होगी। वमन असलमा, नहीं, इसमें दोनों चीजें मौजूद है, ये बै सलम तो नहीं है, बै सलम नहीं है, ये जो है खर्च के बदले में वो है, तो ये चीज मुनासिब नहीं है। इसको अलग अलग करना तो जायज है, लेकिन इसको एक साथ कह देना कि आप 1 महीने तक डालते रहिए, मैं आपको बाद में पैसे दूंगा, तो अलग अलग वक्त में अगर एक साथ आप ले लेते हैं कोई चीज खर्च पर और पैसे बाद में देंगे, तो बज़ाहिर तो कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि हम खर्च पर दुकान से कोई चीज लेते हैं, पैसे बाद में देंगे, लेकिन यहाँ मुतफर्रिक औकात में हो रहा है, मुतफर्रिक हो रहा है। काम की बात अलग है, सामान की बात अलग है, जी हाँ,
पानी, देखिए पानी का मसला अलग है, पानी डालने का मसला अलग है। अगर मेहनत की बात है तो उसको बे इस्तिस्ना कहते हैं अहले इल्म। जैसे किसी नज्जार से हम कोई चीज बनाते हैं, किसी बढ़ाई से कहते हैं कि मुझे सामान हमारा है लेकिन वो चीज बनाकर देना है, तो वो हम उसको पैसे चाहे उसको जो है उसके काम की हम पैसे देंगे, उसके काम के पैसे या तो हम उसको खिसवार देंगे या पूरा एक साथ दे देंगे, जबकि उसकी मेहनत बाद में होगी, वो मेहनत बाद में कर रहा है लेकिन काम के पैसे हम उसको दे रहे हैं, तो ये जायज है। उसको अहले इल्म कहते हैं कि बाद में दे सकते हैं उसको, यानी खिसवार भी दे सकते हैं, एक साथ भी दे सकते हैं। लेकिन चीज के पैसे जब बैसलम कर रहे हैं तो मुकम्मल पहले देना चाहिए, पहले मुकम्मल तौर पर दे देना चाहिए। सही है, सही है। जरूरी है कि आप मुतय्यन कर दें कि पानी कौन सा हो और उसकी तादाद क्या हो और वो 10 दिन में कौन से दिन रखना है। वो बैसलम की शराइत को पूरी करेंगे तो वो चीज जायज है। उसके बाद वो कहते हैं वलम यजुज वमन असलम फी शैइन लम यस्रिफ इला गैरी, और जो किसी चीज में बैसलम करेगा वो किसी दूसरी चीज की तरफ उसे नहीं फेरेगा। मिसाल के तौर पर बैसलम मैंने किसी से की है चावल के बारे में और वो मुझसे कहे कि चावल मेरे पास नहीं है, मुझसे गेहूं ले लो, तो ये अहले इल्म कहते हैं कि जायज नहीं। बाद अहले इल्म ने जायज करार दिया बशर्ते कि वो उस कीमत के बराबर हो, जो कीमत उनको दी गई है उस कीमत के बराबर वो चीज हो, तो उसमें कोई हरज नहीं है, बाद अहले इल्म कहते हैं। लेकिन मौलिक का मसलक ये है कि जिस चीज के बारे में बैसलफ की गई है उस चीज के अलावा किसी और चीज की तरफ उसे फेरा नहीं जा सकता। ठीक है। वलम यजुज लहु बैउहु क़ब्ल क़ब्ज़िही, और उसको बेचना जायज नहीं है उसको, यानी मुस्लिम को जायज नहीं है उस चीज को बेचना क़ब्ल क़ब्ज़िही, उसके कब्जा करने से पहले, क्योंकि ये चीज ये हो जाएगा किसी भी चीज को कब्जा करने से पहले बेचना, जिससे अल्लाह के रसूल मना किया, हम इससे पहले पढ़ चुके हैं, वला तबि मा लैसा इंदक, जो तुम्हारे पास नहीं उसको मत बेचो। तो जब तक वो चीज मुस्लिम के पास नहीं आएगी तब तक वो किसी शख्स को नहीं बेचेगा। वलल हवालतु बिही, और फिर उसको किसी दूसरे के हवाले करना मुमकिन नहीं है। मिसाल के तौर पर मैंने किसी से बैय सलम किया है और उसको पेज की कीमत दे दी है, उसके बाद जब उसके अदा करने का वक्त आ गया तो वो मुझसे कहे कि मैंने यही चीज किसी और शख्स के साथ की है 1000, जैसे मैंने किसी से बैय सलम की है 100 किलो खजूर के लिए 1 साल की मुद्दत तक के लिए। जब उसके देने का वक्त आ गया और मैंने कहा कि मेरे खजूर दे दो, तो वो कहे कि जो 100 किलो खजूर हैं मैंने किसी और शख्स से बैय सलम किया, आप उनसे ले लीजिए, वो शख्स मुझे देना है। तो मालिक साहब कहते हैं कि ये जायज नहीं, क्योंकि उसमें कई चीजों का फर्क हो सकता है, हमारे और उसके अक़द में और उनके अक़द में कुछ चीजों का फर्क हो सकता है। मिसाल के तौर पर मैंने किसी से बैय सलम की है 1000 रियाल देकर 100 किलो सुकरी खजीर के बदले में, जो शाबान में मुझे देगा। जब शाबान में देने का वक्त आ गया तो वो मुझसे कहे कि मैंने किसी और शख्स से बैय सलम की, उसने जो मुझे खजूर देना है, जो मुस्लिम इलैह है, और वो मुझसे कह रहा है कि आप उनसे ले लीजिए, वो जो 100 किलो खजूर जो मुझे देना है, हाँ दूसरे की तरफ कह रहा है। तो मलिक साहब कहते हैं कि ये जायज नहीं है, क्योंकि ये इख्तिलाफ का सबब बन सकता है, ये इख्तिलाफ का सबब बन सकता है। वो तजूजुल इकालतु फीही औ फी बादिही, और इसमें इसको फस करना, तोड़ना जायज है। इकाला असल में कहते हैं किसी चीज को जायल करना, इसी से गुनाहों का इकाला करते हैं, गुनाहों को माफ कर देना अल्लाह की बात। जैसे कि अल्लाह हदीस में है कि मन अकाला मुस्लिमन अकालहुल्लाहु असरतहु यौम क़ियामा, जो किसी मुसलमान की गलतियों को दरगुजर कर दे तो अल्लाह तबारक तआला क़यामत के दिन उसकी गलतियों को दरगुजर करेगा। तो इजाला करना, दरगुजर करना, ये है माने इकाले के। तो ये यहाँ माने ये है कि उसको फस कर देना। मिसाल के तौर पर मैंने किसी शख्स से बैय सलम किया 1000 रियाल पर, 1000 रियाल उसको दिए 100 किलो खजूर के बदले में। उसके बाद फिर मुझे महसूस हुआ कि वो खजूर मुझे नहीं चाहिए, तो मौलवी साहब ताला कहते हैं कि ये जायज है, क्योंकि वो फस कर रहे हैं, क्योंकि ये फस के माने में है। मुकम्मल तौर पर या उसका कुछ हिस्सा मैं फस कर सकता हूँ। मिसाल के तौर पर मैंने किसी शख्स से जो है बैय सलम किया खजूर और गेहूं के बारे में 5000 रियाल के बदले में, ठीक है। उसमें से जो है 2000 रियाल खजूर के हैं और 3000 रियाल गेहूं के हैं, जो हमने तय किए थे। उसके बाद मैं कहूं कि मुझे जो है खजूर नहीं चाहिए, अलबत्ता गेहूं दे दो, ठीक है। तो पूरी नहीं, बाद में अक़्द हो गया, अक़्द के बाद की बात है, अक़्द के बाद। जी
मतलब दो चीजें उसने किया है, जी हाँ, लेकिन वो एक चीज को उसने मना कर दी, तो पूरी जो कीमत है वो उसकी एक चीज होगी या फिर उतनी ही कीमत की एक चीज होगी? नहीं, दोनों की कीमत अलग अलग तय हुई थी ना। खजूर की कीमत 3000 रियाल थी, तो मना कर दी उसने ना। हाँ, तो वो खजूर के 3000 रियाल वापस कर देगा वो। अब वो 2000 रियाल उसके पास होंगे, जिसको वो जायज करे। इसीलिए कहते हैं मौलवी साहब ताला वो तजूजुल इकालतु फीही, और इस पूरी बै में, पूरी बै को फस करना जायज है, इसे फिर जाना या इसका इजाला करना या इसको तोड़ना जायज है। औ फी बादिही, या उसके बाद हिस्से में, लिअन्नहा फस्कुन, इसलिए कि ये फस के हुक्म में है, फस के हुक्म में है। अगर कुछ माल उसका खराब हो जाता है, जिस तरह कोई अनाज तूफान आ जाता है, आंधी आ जाती है, उसका उसके बस में नहीं है, तो वो किस का उसको मुद्दत दी जा सकती है, दूसरी मुद्दत दी जा सकती है। तो यहाँ हम लोग जो है फिर का सबक बस करते हैं और फिर उसके बाद हदीस शुरू करते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत, अस्तगफिरुका।